Dear students, greetings of the day. As you already know, in the last lecture, we have studied about refraction of light introduction we had, and we also studied how the rays of light bend when they travel from one transparent medium to another, as you can see in the screen, on the screen. Yeah, here it is. This is called incident ray, as already I explained to you. Then this is where the ray bends inside the glass. It is called as refracted ray, this one. And this ray is coming out of the glass slab. It is called emergent ray, sorry. So these are three rays. And you already know that two normal we dropped here at point Q, here at point R. They are MQ, M dash, and NR, N dash. Okay, there are three angles that we got: angle of incidence, angle of refraction, and angle of emergence. Now, moving next, okay, the ray of light gets refracted when it passes from one transparent medium to another, and in the process, it follows certain laws. We call it as laws of refraction. So today we are going to first discuss about laws of refraction. Okay, laws of refraction. What laws does it obey? So in order to understand laws of refraction, we have to again have the ray diagram drawn. This is in short, I'm going to draw this. This is the periphery of glass slab, the boundary of glass slab, ABCD. Okay. And incident ray. This is incident ray, then refracted ray, the ray that bends, and then emergent ray. Okay. So we named it as PQ as incident ray, QR as refracted ray, RS as emergent ray. Now normal, there are two normals as you already are aware. Normal one here, normal two here. Okay, you call it as MQM dash and you call this as NR N dash. Three angles again. Angle of incidence here, I. Angle of refraction here, R. And angle of emergence here, E. Okay. Now, as per the first law, what does the first law say? Let me first write down, then I'll explain to you. Okay, law number one. First law. So I'm taking the statement from a textbook. As per a textbook, the law says that incident ray and refracted ray, okay, at the point of incidence, okay, are on the opposite side of the normal to the surface of the slab at that point. Opposite side of the normal, ये इसका मतलब क्या है? Let us try to understand. This point, I'll just zoom in and show you this point. See, this point can be called as the point of incidence. ये वाला point, जहाँ पे मैं आपको सर्कल डॉट करके दिखा रहा हूँ, this point. यहाँ पर रे इंसिडेंट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये वाला पॉइंट. ओके, लेट मी राइट डाउन, शो यू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Okay, so this is point of incidence. Okay, as per the first law, the incident ray means this ray and the refracted ray means this are going to be on the opposite side of the normal. ये normal है आपका. Okay, और इसके opposite side में होने का मतलब है one is towards the left hand side of the normal and the other one is towards the right hand side of the normal. तो ध्यान से देखो, ये है आपका नॉर्मल, इसके लेफ्ट साइड में इंसिडेंट है तो राइट साइड में रिफ्रैक्टेड रे होगा. और वाइस वर्सा अगर आप यहाँ पर देखोगे, as you already know, there are two places where the refraction is happening, 2 points. यहाँ पर भी देखो ध्यान से, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, दिस विल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे भी अगर ये इंसिडेंट रे तो ये रिफ्रैक्टेड रे. बोथ आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. ये लेफ्ट साइड में है इंसिडेंट and right side में refracted ray. So that is the first law which I am going to write down as a in the form of statement, that incident ray, मैं short में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, incident ray means IR and refracted ray and RR is refracted ray lie on the
opposite side of the normal. But where? That point is very important. उधर लिखा है at the point of incidence. You already know what is the point of incidence. जहां पे तीनों बाउंड्री मिलता है, दोनों बाउंड्री स्पेशली, एंड नॉर्मल, द बाउंड्री ऑफ वन मीडियम टू अनदर मिलता है, प्लस वहां पर नॉर्मल रहता है. दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हियर यू कैन सी, यहाँ भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. अगर आप ये रिफ्रैक्शन देखते हो तो यहाँ पर भी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे अपोजिट साइड में, ये देखते हो तो यहाँ पर भी इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे अपोजिट साइड में. ओके, सो दैट इज योर फर्स्ट लॉ. इट इज कॉल्ड एज the law of refraction number 1. What is the law says? Incident ray and refracted ray lie on the opposite side of the normal at the point of incidence. Okay, let's focus now on the second law. Now second law is very, very important. What does the second law talk about? Second law is the one which I just told you we will be discussing in the next lecture. For a given pair of media, as per textbook, I'm reading your statement. For a given pair of media, the ratio of sine I to sine R is a constant, okay, where I and R is already known to you. So for a given pair of media, अगर बोला जाए तो इस डायग्राम में तो हमारे पास इधर एयर है और इधर ग्लास है. ओके, तो प्राइमरीली हमारे पास ये दो पेयर है, एयर एंड ग्लास. इधर देखेंगे तो ग्लास एंड एयर आएगा, यही यहाँ पर. बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एट ए बी, इस सरफेस पे बात कर रहे हैं. सो वी हैव air and glass. These are the two pair of media. So as per law number 2, for a given pair of media, and you can write down here जो आपने पढ़ा है, for a given pair of media, आपने क्या पढ़ा है भाई? आपने यहाँ पे पढ़ा है air and glass. Air and glass, which is in this example. So for a given pair of media, the statement says, the law says, sine angle of I divided by sine angle of R is always constant, which is called the ratio of sine I to sine R is constant. This ratio itself, which is the ratio of sine I to sine R, you know what is sine? It is a trigonometric ratio. Okay, sine is found by taking opposite side upon hypotenuse. So sine I, इस एंगल का साइन रेशियो, इस एंगल का आपको मालूम है कैसे फाइंड करना. परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और फिर यहाँ पे राइट एंगल आएगा, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा. आई विल शो यू, थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम इसमें. बट जो लॉ है बहुत सिंपल है. फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, द रेशियो ऑफ साइन एंगल आई टू साइन एंगल आर इज अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय n, and it is called as Ri. Ri is short form for, very important, refractive index. Refractive index, इसको याद रखना. So for a given pair of media, एक refractive index रहेगा जो कांस्टेंट रहेगा. आप एयर एंड ग्लास का लोगे तो वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. आप ग्लास एंड वाटर का लोगे तो वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. आप ग्लास और किसी और, लेट्स से केरोसिन, टर्पेंटाइन or any other liquid, any other transparent medium, it will be a constant. Okay, diamond to air, constant. Remember, so refractive index is always measured with respect to pair of media. दो मीडिया होने चाहिए तभी तो रिफ्रैक्शन होगा. Whenever you have two medium, तो ही रिफ्रैक्शन होगा, और जब रिफ्रैक्शन होगा तो आपको ये मिलेगा n. n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, थोड़ा सा डीप में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाला. बट बिफोर वी गो टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम वापस से यही दो लॉ रिपीट करेंगे. द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर, नंबर 1, द इंसिडेंट रे. फोकस हियर, ये इंसिडेंट रे है. इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. ये नॉर्मल है, नॉर्मल के लेफ्ट में है इंसिडेंट रे और राइट में है रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज द फर्स्ट लॉ. दूसरा लॉ क्या बोलता है? द साइन एंगल ऑफ आई, ये एंगल आई है, इसका साइन आई मतलब साइन रेशियो इस एंगल का डिवाइड बाय इस एंगल का साइन आर, ये आर मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो इसका रेशियो आई का विथ आर, साइन रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस कांस्टेंट को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, आर आई शॉर्ट में या फिर सिंबल में एन.
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, क्या होगा? ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला, जो पेयर ऑफ मीडिया होगा उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। लेट अस से आवर रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? यू कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टू वेज, ओके। दो तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो, मतलब दो मीडियम का। यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे मीडियम वन, मीडियम टू। मीडियम वन कैन बी एयर, कैन बी ग्लास, मीडियम टू, और उल्टा भी होता है, मीडियम वन कैन बी ग्लास एंड मीडियम टू कैन बी एयर, उल्टा भी होता है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, ये तो हमने पढ़ा हुआ। तो हम क्या करेंगे, वापस से हम ग्लास स्लैब बना रहे हैं, ये बाउंड्री है इसका ABCD, ठीक है। अब हम यहाँ से इंसिडेंट रे लाएंगे। इंसिडेंट रे आने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो सीधा जाना चाहिए था बट सीधा नहीं जाएगा, वो बेंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ तक। ना, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ओके। आप इसको, इसका नाम नहीं लिखो तो भी चलेगा। मीडियम वन को आप एयर ले लो, लेट अस कॉल इट एज मीडियम वन। ये ग्लास है, लेट अस टॉक अबाउट दिस, कॉल इट एज मीडियम टू, ठीक है। अब जब रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर कर रहा है एयर से, तो हम बोलेंगे इसका जो स्पीड है वो v1 है। Let us assume that the speed of ray of light when it is entering from air to glass is v1, but naturally जब वो ग्लास में जाएगा तो उसका स्पीड सेम नहीं रहने वाला, ठीक है। You know that this is normal. I have not drawn normal. I'll draw the normal. This is normal. ये normal है। ये एंगल आपको मालूम है I है, और ये एंगल R है, ठीक है। अब जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगा एयर से, यू ऑलरेडी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मैक्सिमम। नहीं मालूम है तो बता दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम एंड एयर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट वैक्यूम में फास्टेस्ट है, एयर में स्लाइटली कम है, और बाकी सब मीडियम में द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर। व्हाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिंपल रीजन दैट एज यू गो फॉर द डेंसर मीडियम, द रे ऑफ लाइट गेट्स मोर, यू कैन से रेजिस्टेंस, एंड देयरफॉर उसका स्पीड कम होता है। डेंसिटी ज्यादा होगा तो रे ऑफ लाइट का स्पीड कम होगा, ओके, दिस यू कैन अंडरस्टैंड। ना हमारे ये एग्जांपल में रे ऑफ लाइट एंटर कर रहा है एयर से और जा रहा है ग्लास में, तो कौन सा डेंसर मीडियम है? ओके, नेचुरली द डेंसर मीडियम इज ग्लास, ओके। सो ग्लास में एंटर कर रहा है एयर से ग्लास में, विच मीन्स इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इसका मतलब मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। आर इज रेयरर, लिख लेता हूँ यहाँ पे सो दैट यू रिमेंबर इट। आर फॉर रेयरर मीडियम, डी फॉर डेंसर मीडियम। रेयरर का मतलब होता है जिसका डेंसिटी कम हो, डेंसर का मतलब ऑब्वियस डेंसिटी ज्यादा है। तो आपका रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर में गया है, और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर रे ऑफ लाइट हमारा बेंड हो रहा है टूवर्ड्स नॉर्मल, डोंट डू नॉट फॉरगेट इट। जाना चाहिए था सीधा ऐसा, लेकिन इट हैज बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल का ये वाला एंड की तरफ वो रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा सा बेंड हो गया, देखो, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये बात भी हमें याद रखना है कि whenever ray of light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, okay। अब कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अगर ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे इसका साइन आई लेते हैं, फिर यहाँ ट्राइंगल बनाते हैं, इसको बड़ा करेंगे तो ट्राइंगल विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके साइन आर लेंगे, फिर हम रेशियो निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। बट अल्टीमेटली इतना हमारे टेक्स्ट बुक में बड़ा ब्रिलियंट, सिंपल और ब्रिलियंट वे में दिखाया है। क्या बोला है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस पेयर ऑफ मीडिया दैट इज एयर टू ग्लास, तो आप क्या करोगे? मीडिया वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, always read this way, refractive index of one media one या medium one with respect to two. This is how it is read, refractive index of medium one with respect to two. याद रहे, पहले वन राइट वाला बोलते हैं फिर टू वाला। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, आप देखो, विल बी दिस वे। यहाँ पर इज इक्वल टू रेशियो, रेशियो ऑफ ए, रेशियो का मतलब पता है तुम्हें, डिवीजन साइन रहेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, which is I have shown you v1,
डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये मीडियम 1 था, ये मीडियम 2, which is V2. So whenever I want to find refractive index of medium 1 with respect to 2, medium 1 का velocity ऊपर आएगा, medium 2 का velocity नीचे आएगा, राइट वाला 1 ऊपर, लेफ्ट वाला 2 नीचे। अब यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर तो हमको मालूम मीडियम 1 जो है वो एयर है और मीडियम 2 जो है वो ग्लास है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले को वेरी कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसा अगर हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो आपको क्या मिलेगा, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विच इज v1, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज नॉर्मली डिनोटेड बाय c, रिमेंबर दैट velocity of light in air is denoted by c, which is actually the speed of light, 3 into 10 raised to 8 meter per second, divided by velocity of light in medium 2, which can be taken as v2. So here the refractive index का formula, refractive index is c by v2, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, c by v2। जहां पर c लिखना है आपको, what is c वो जानना जरूरी है, where c is speed of light in vacuum or air, light in air or vacuum. Why I'm saying air or vacuum, because the speed of light in air or vacuum is almost equal. And what is the speed of light in air or vacuum? The speed of light in air or vacuum is known to us, and the speed of light in air or vacuum is 3 into 10 raised to 8 meters per second. That is the speed of light in air or vacuum. चलिए एक और देख लेते हैं एग्जांपल, हम सेकंड बाउंड्री पे ले लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सेकंड बाउंड्री। पहले हमने ये वाले बाउंड्री पे देखा, वी सॉ ऑन दिस बाउंड्री, ये बाउंड्री पे हमने लिया एयर टू ग्लास। अब हम दूसरे बाउंड्री पे लेते हैं, ग्लास टू एयर, नेक्स्ट वाले बाउंड्री पे। ये हमारा ग्लास स्लैब है और ये हमारा नॉर्मल, चलो बना देता हूँ मैं पहले। अब हमारा इंसिडेंट रे यहाँ पर है, ये इंसिडेंट रे, ये ग्लास है, डू नॉट फॉरगेट, और ये एयर है। अब बाउंड्रीज हमने चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब मीडियम 1 ये हुआ ऊपर वाला, एंड ये वाला मीडियम 2 हुआ, ठीक है। नाउ रे ऑफ लाइट विच इज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर शुड हैव गॉन स्ट्रेट, बट स्ट्रेट नहीं गया, ये बेंड हो जाता है। शुड हैव गॉन स्ट्रेट, बट क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। ध्यान देने वाली बात आपकी क्या है कि बेंड हो रहा है तो किधर बेंड हो रहा है, वो ध्यान देना। See, it should have gone straight like this, ऐसे जाना चाहिए था, but it has bent away from normal. नॉर्मल ये ग्रीन वाला है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चला गया। यहाँ पर क्या हुआ था, नॉर्मल के पास आ गया था, ये देखो टूवर्ड्स नॉर्मल आया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लुक एट द डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर जाना चाहिए था सीधा, बट अवे बेंड हो गया। How will I get refractive index over here? Very simple. Refractive index का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैंने बताया। Refractive index यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया है ना, Refractive index टू ग्लास से एयर में आ रहा है ऐसा, तो फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बोला ना, राइट हैंड साइड वाला हमेशा वेलोसिटी ऊपर रहेगा, राइट हैंड साइड वाला, ये 2 वाले का वेलोसिटी ऊपर रहेगा, 1 वाले का नीचे रहेगा। इट मींस द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन second medium, which is air, divided by velocity of light in first medium, which is glass, v2 upon v1। अब मैंने आपको बोला है the velocity of light in air is considered to be c, which is the speed of light in air or vacuum। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या होगा, एयर का जो, यानी मीडियम 2, ये वाला जो है मीडियम 2 का जो सिंबल मैंने क्या बताया था आपको, मीडियम 2 का सिंबल है c, है ना, तो होगा यहाँ पर फॉर्मूला में चेंज, C V2 C upon V1, okay, where medium 2 is your air, so C upon V1, where refractive index N2 N1। that is important कि C का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। what is the value of C? C का वैल्यू है speed of light in air 3 into 10 raised to 8 meter per second, okay।
नाउ थर्ड कंडीशन है, हमने अभी obliquely incident किया ray of light को. In all the cases, the ray of light is incident obliquely on the glass slab. Means it is making certain angle. ये angle I, ये angle R. But when I incident the ray of light perpendicular on the glass slab, ध्यान से देखो. A, B, C, D. This is our glass slab. Now we are making sure that the ray of light is incident normal to the glass surface. Think what will happen here. अभी तक आपने जो भी इंसिडेंट किया था obliquely किया था. Now you are incidenting the ray of light at right angle to the surface, which is ये angle 90 degree है, which also means angle of incidence कितना है. Angle of incidence कितना है भैया? अगर normal के parallel हम डाल दें, ये normal है, तो angle of incidence is 0. और जब angle of incidence 0 है तो क्या होगा? Refracted ray कैसा जाएगा? सोचने वाली बात है. Refracted ray will not deviate. In fact, refracted ray will just pass straight. ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे सीधा चला जाएगा, मतलब नो डेविएशन. लेट मी राइट डाउन ओवर हियर. थोड़ा सा डायग्राम में तुमको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, बट रिमेंबर यहाँ पर नो डेविएशन. किसका नो डेविएशन? इंसिडेंट रे का. इंसिडेंट रे अगर राइट एंगल पे टू द सरफेस, आई एम सेइंग राइट एंगल टू ए बी, आप इंसिडेंट करते हो विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंट 0, तो आपका रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे कोई बेंड नहीं होगा. इट विल जस्ट सिंपली पास स्ट्रेट. क्वेश्चन ये उठना चाहिए आपके दिमाग में, ऐसा क्यों? व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है कि बाकी जगह पे ये बेंड हो रहा है बट ऐसे बेंड नहीं हो रहा है? ओके, I'll give you 2-3 seconds to think. Why does this happen? कि incident ray, when it is incident normal to the surface, it just passes straight. Whereas when it is incident obliquely, it bends. यहाँ भी bend हुआ है, first case में भी bend हुआ है. देखो oblique था ना, angle of incidence is non-zero. यहाँ भी bend हुआ है, यहाँ भी bend हुआ है, but यहाँ क्यों नहीं bend होता है? That's because whenever ray of light travels from one transparent medium to another, especially rarer to denser, remember, जब वो rarer to denser जाता है तो ray of light tries to take the shortest possible distance so that its speed is maintained same. हालांकि you know that whenever ray of light travels from rarer to denser, उसका speed कम होने वाला है. So हमारा जो ray of light है वो short distance लेता है. यहाँ पे देखो rarer to denser, अगर ये वाला distance लेगा तो ये लंबा डिस्टेंस होगा. ओके, इट विल बी लार्जर डिस्टेंस टू ट्रैवल. ये वाला लेगा तो इसमें शॉर्टर डिस्टेंस टू ट्रैवल. ऐसे देखो, यहाँ ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया. विच इज द शॉर्टेस्ट? दिस वन इज द शॉर्टेस्ट. ये शॉर्टेस्ट है. सो रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट ट्राइज टू टेक शॉर्टर डिस्टेंस सो दैट it can travel the same distance, in the with the same amount of time, even though the speed is less. But in this case, third case, you'll find this is the shortest distance. इससे छोटा कोई distance है ही नहीं. Perpendicular, इससे छोटा कोई distance नहीं है. That is why ray of light does not bend and it carries on with the same speed. Okay, so this is refractive index. Refractive index is the ratio of sin I to sin R, or it is also defined as the velocity of the light in medium 1 to the velocity of light in medium 2, provided the ray of light is entering from one medium to the second medium. इस बात को याद रखना. Normally the velocity of light in air or vacuum is denoted by c, which is the fastest speed of light ever recorded. I have given you the value. The value is 3 lakh kilometers per second, which is 3 into 10 raised to 8 meters per second. Okay, now what are the different natural phenomenon that we observe because of refraction of light? There are many natural phenomena that we observe because of refraction of light. One of them is mirage effect. The other one is total internal reflection. The other one is twinkling of stars, rainbow formation, etc. The spectrum that we see in the prism. These are all because of refraction of light. We can discuss right now about the prism. You know what is a prism, okay? A prism is drawn like this as a triangle, but it is not a triangle. It's a three-dimensional figure, okay? It has two triangular faces and three rectangular faces which are joined. Three-dimensional view अगर आप देखोगे, तो it is like
like sometimes people call it as a pyramid, but it's not a pyramid. 3 रेक्टेंगुलर, मतलब ध्यान से देखो, यहाँ पे रेक्टेंगल, इसके पीछे एक पूरा रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल इधर है, इसके पीछे एक रेक्टेंगल है पूरा, और इधर एक रेक्टेंगल है, मतलब 3 रेक्टेंगल है और 2 ट्राइंगल है. 3 रेक्टेंगुलर फेसेस आर कवर्ड बाय 2 ट्राइंगुलर फेसेस इन फ्रंट एंड बैक. मतलब ये एक ट्राइंगल और उसके पीछे एक ट्राइंगल और पूरा रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल. ठीक है, ऐसा. So this is prism, and when we pass sunlight through prism, what happens? This sunlight, which is made up of 7 different color, splits 7 color में. ऐसे. I am showing you the most deviated color and the least deviated. सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला कलर वायलेट है और सबसे कम डेविएट होने वाला कलर रेड है. मतलब इनके बीच में पूरे और भी कलर है ऐसे. तो रेड वापस आके ऐसा डेविएट होगा, देखो वायलेट रेड, इसके बीच में पूरे 5 कलर्स है ऐसे. 5 + 2 7. It's called Vibgyor. The color pattern is obtained in the form of this. We call it as V, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. ये मोस्ट डेविएटेड है, सबसे ज्यादा बेंड होने वाला कलर रिफ्रैक्शन में. ये लीस्ट डेविएटेड है, सबसे कम बेंड होने वाला कलर. ठीक है. मीडियम डेविएटेड नॉर्मली हम ग्रीन को लेते हैं या येलो को लेते हैं, जो बीच में डेविएट, मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा, इट spreads into 7 different colors. This process in which the ray of light splits into its component colors, 7 different color, is called as dispersion of light. Process यानी phenomenon को हम बोलते हैं dispersion of light. Okay, the phenomenon in which sunlight or the white beam of light splits into 7 different constituent color is called dispersion of light, that we are observing through the glass prism. And the pattern that we obtain, जो pattern मिलता है, ये वाला pattern, ये जो आप 7 color का pattern जो आपको मिलता है, इसको बोलते हैं spectrum. How is the spectrum obtained? This way the spectrum is obtained. Vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow and orange, and last में red. Just mind it, red is the least deviated color and that is why red का बहुत ज़्यादा use होता है, especially in the form of traffic signals. ट्रैफिक सिग्नल में रेड का क्यों यूज होता है? बिकॉज अगर आप डिस्पर्शन में देखेंगे तो ये सबसे कम डेविएट होने वाला कलर है. ओके, सो इससे फायदा क्या है आप मुझे बताइए कमेंट में. व्हाट इज द बेनिफिट कि अगर सबसे कम डेविएट रेड कलर होगा तो उससे फायदा क्या होगा? क्यों हम इसे रेड ट्रैफिक सिग्नल में डेंजर या फिर स्टॉप वाला साइन यूज करते हैं? ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, दैट कमेंट व्हाई दैट रेड इज द traffic signal mein red is the signal or sign for stop. Okay, why not yellow, why not violet? Okay, all these color. ठीक है students, so see you in the next lecture. Take care. Here we stop today. Bye bye. Thank you from Vision Educare Academy.